morning, everyone. Hope all of you are doing well and Happy New Year in advance. I think this will be the last time that we'll be meeting in 25. Thank you, sir. So Same to you. let's Same hope to you, sir. next year all of us will turn profitable. Okay. So with that, we'll again start with our usual thing of looking at monthly, weekly, daily, and hourly patterns and try to discuss what the market is going to do for the next week, 10 days. Now, this monthly candles they show a positive bias. I mean, there is no two ways about it. It has sort of made this cup and handle, it broke this, and it has been constantly trading on top. So, unless and until this particular point of 25,000 is not broken, the trend is positive, and any retracements might be can be bought into. So, that is the overall theme on monthly. Monthly has not turned bearish, although it is consolidating in a very tight range, but taking short bets that too for long term here will not make sense. And if you see the last 2 months candles also, there were two sell-offs that were attempted by the sellers, but both of them were being bought up by the buyers. And the previous month candle, although the initial beginning was a good sell-off, they ultimately turned it around and then closed it almost at the highest point of the month. Something similar, I think, will also happen here, wherein the next 2 3 days we may try to test 26,300 or 26,200 and close in this particular small range again wherein you'll get a small candle with a very short body on top, which is a perfect candle for consolidation. And if you see, after a big candle on October, November and December, the candles have become small. So since this particular zone is very close to all-time high, and we have had 2 months of consolidation, now it is very high. Now it is very likely that we might break out on the upside. This will be evidently visible in weekly. Now, if you see this weekly consolidation is at its peak, just look at the closing points of all these weeks. It is in between this small range, like from 25,900 to 26,150. That is the range, like 200 points range, and we have spent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 weeks now gone. So it is high time Nifty will try to move in either direction, but since we have been consolidating at the top, I don't think there will be a significant down move. If at all there is a down move, that will only be to remove the longs which have been accumulated in this sort of sideways consolidation. It might break this, test this particular level 25, 2400, and then again bounce back. So only two possibilities that I see. Either we break out in the first or second week of Jan, or there will be a shakeout. Basically, testing these levels, removing all the longs, turning everybody bearish, and then eventually turning around. Now, the second scenario of shakeout, why I say it will be limited here is if you see, mostly big down moves are always caused by FIS. Pros and DIS, they don't. I mean, big down move does not favor DIS, that is all for sure, because DIS have only mandate to go long. So for them, after continuous buying of about 90 days, it doesn't make for sense to for DIS to take the market down to 10, 12 percentage from the levels that where we are in. And if we think that market going down might be an opportunity for FIS to re-enter, that particular scenario also is limited because if you see the level of shorts that they have at this present moment, they are almost 9-10% only long and 90% shorts. So they don't have any more space left to keep on adding shorts. So if at all there will be a move here, we'll definitely find a support here before turning around back. That is for weekly. Uh, Daily. Again the same. Daily all this pattern is a very, how do I put it? It's a very random area where market is going up one day, then the next 2 3 days it is going down. Perfect example of consolidation where both the players are active, both buyers are also active and sellers are also active. So unless and until we take out this zone or this zone, there is no point in sitting for a direction. We'll just wait it out. Even if this point, this level break, we have a significant support at this particular place, 25,400 to 300. This is the area where we can go easily long and then wait out for like for 2 or 3 weeks for testing all time high. Because you have a significant return of 1,000 points and the downside is probably limited if at all it decides to turn here, which is a very good scenario for FIS to enter. So
That is what I see for Nifty. Now, specifically for Monday, if you see daily again, now this is again a clear pattern. Daily says this is bearish, isn't it? Like two candles on top indicating reversal, and then there's a follow up on this reversal. So it says bearish provided we take out these zones. So probably we can test this particular trend line, come till here and then bounce. Or if you see it in weekly, if sellers wanted to actually take it down, they'll not leave the weekly candle like a hang, like a gravestone doji like this. They would have taken it down immediately because you have had too many longs that are there already in this particular zone. So what I feel is Monday's candle might decide the direction of the week. If Monday's candle immediately after opening breaks out, takes out this level, that is the low of Friday, we can go short and stay short for the entire week till that particular day's high is not taken out. Why I say this is the weekly candle is a gravestone doji the previous week, and if at all it takes out in the first half an hour of the starting day of the week, then most often that particular trend continues for the entire week, unless and until there is a major support and then it decides to bounce off that support. So for the first 2 or 3 days, you can easily go short if at all this level is taken out, 26,000 basically. And if 26,000 is taken out, the first level to target is 25,900, and then eventually this trend line that we saw on daily. So that will be my plan for the coming week. And for Monday also, I want this level to be taken out right at opening. If at all it decides to like do consolidation again here, then I don't see it breaking down. It will eventually break out on either on expiry or the new CDs in Jan. So Monday for me is a deciding day. That was for Nifty. If you see Bank Nifty of late has been doing nothing compared to Nifty. Nifty actually, this particular jump was quite good. Bank Nifty is not that pronounced. Bank Nifty is showing sort of a breakout failure. If you see this, it broke out here, reversed, and then coming here. So if Bank Nifty is taking out this particular zone of 58,800, then that will be the main driver for Nifty to go down. So far, what has been happening is Nifty kept on trying to go down, but Bank Nifty was outperforming, so Nifty's downside was limited. Now, if Bank Nifty starts to go down, Nifty might not be able to hold long because there are not many sectors that can outbid Bank Nifty's underperformance on the downside. So this particular level is very key on Monday. But since Nifty's Friday's low is a pivot, sort of a pivot for the entire week, and Bank Nifty still has a couple of 100 points further room before it reaches its support, there might be a scenario wherein this 200 points down move will be done on Bank Nifty on Monday itself, whereas Nifty decides to consolidate. So if that is the case, then Bank Nifty will again jump from this support, and Nifty, since it is consolidating, it might. So those are the scenarios that I see. We will see again on Monday. I'll keep on posting whichever scenario plays out in the market based on how the first 1 hour trade on Monday is done. That said, one thing which is going on in Bank Nifty's favor is PSUs keep on performing. And if you see the results that have been given out by most of the PSUs, they are encouraging. I mean, almost all of them are trading at 9, 10 PE with 1 or 1.2 price to book value. So there is still a lot of steam left for PSU banks to go up, if at all they want to match still private banks. And on top of it, the private banks have gone nowhere the past 2 or 3 years. So it's very highly unlikely that Bank Nifty will all of a sudden fall from the cliff unless there is a major news of some great default by a big company or increasing NPS over the next couple of quarters. So till that time comes out, this channel which has been going on, Bank Nifty might trend up slowly in this particular channel itself. That being said, Bank Nifty has been at this upper end of channel for quite some time. So probably again you might see a move till the downside of this channel, something like this. So if this decides to come down, probably it might come to these levels, or again sideways consolidation will break up, something like that. But no major moves. Nifty and Bank Nifty, they're all moving very slowly. All are consolidating. We'll have to wait which side it breaks out. But as of now,
Both of them seems to be ready for an upside break. That was for Bank Nifty. Any other index that you want me to cover? Bitcoin is as its major ये support. सर बिटकॉइन भी बता दीजिए थोड़ा, हाँ, बिटकॉइन और फिर फॉरेक्स जो भी आपको सही लगता फॉरेक्स तो मैं देखता ही नहीं हूँ बस उतना है। ओके नहीं करने में. Bitcoin is bounced on its major support the last month and it is consolidating now again. Now the problem is even after its major support, it has not bounced that significantly. So what I feel is a month's consolidation here, probably one more month, a bit up on this, and then again you will have a fall to this level, 60,000. That is monthly, like 2 or 3 months. If we go down to weekly, see, this is a beautiful pattern for it to confirm. As soon as these levels are taken out, 84,400, we can easily sit for these levels, 76,000. So 8,000 point, very easy trade on Bitcoin whenever it breaks 85, 84,500, this range. Because even after coming to the major support, it has not bounced well. So it will retest this point again, and whether it bounces here or not will have to be seen. But as soon as this is taken out, you have 4 5,000 points of easy move here. That is for Bitcoin. Even for Ethereum, it's the same. Ethereum actually it has not even come to its support. There is still quite a long way for it to come to its support. So Ethereum we can go short now also. Bitcoin will have to wait for some time, but Ethereum we can short now also. And gold and silver have nothing to be said now. They are not even stopping. Silver, this is a short squeeze for sure. Let's see if it is going to reverse from here or it keeps on going. That's it. Any other index? Nasdaq is again at its high. Okay, so with that, now we'll take questions. I believe Srinivas ji had asked us a couple of questions a while back, isn't it? Sir, if you can unmute, maybe we can discuss. We can start with those questions first. Yes, sir. Yes, sir. See, I asked about the setup, general setup, and psychology, and after getting lost, no, how to we need to overcome that. Okay, so Something sir, like your first question was how to find trend confirmation, isn't it? That was your first question. yes, 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 sir. Yes. Okay. So, sir, what I do is I look at top down to confirm trends. Like a general view would be how I have now done market analysis for the past 15 20 minutes. That I start with monthly. Now, since monthly is a bullish candle, I am not overly bearish. Whenever market reaches at critical supports, I try to go bullish instead of bearish. So that is how I decide my trend. Monthly says bullish, weekly also kind of say bullish, apart from this particular last week's candle. Every other week, if you see, there has been buying from lows. So whenever Nifty is trying to break its support, it's not able to break and buying is emerging from support. So that itself is a big indication that market is bullish. There is, at least it is in positive direction. So that is how I get my trend confirmation. Then your second question was volume analysis for intraday. So, like I have told you guys previously, I use this a lot nowadays. Let's start this. So, basically, this since it is the end of the day, you are seeing point of concentration is here. I believe most of you are familiar with this particular indicator that I'm using, this volume profile. Conventionally, volumes were plotted on the. Explain, sir. Please explain. Okay, so conventionally, volumes were plotted on the bottom of the chart. Uh, Bottom of the chart volume does not tell you at what price the volumes are getting accumulated. They only tell you with volumes are being accumulated with respect to the time that the trading is going on. This particular volume profile, they tell you at what particular price majority of volume is being traded. And more often than not, this is a dynamic indicator wherein like candle to candle there will be volume updation on the indicator and also POC will change from time to time.
This white line that you see, that is POC, that is point of concentration. It basically says this is the price level at which the maximum amount of transactions were done for the previous day. So now let's say we are trying to predict what will happen the next day, and if the market, let's say, opens here, it sort of goes here and then takes rejection. Now, what does that mean? So previous day's point of concentration, the next day is acting as a resistance. That is a clear indication that the previous day, whatever price action has happened, sellers have dominated that and they don't want to let go of their position. So they have again started selling from here. So that will be an indication for us based on this POC the previous day that we can short here, keeping a small stop loss near the previous swing high on the previous day, and then we look for new targets, at least this, and then if this breaks, so on. That is one way of looking at it. And these patterns that you see, these volume patterns, more often than not, they'll also tell you what is the day gonna look like. So let's say you have, I'll just, where is the brush? Okay. So let's say this volume profile is something like this, wherein you have volumes here, 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 here. It is indicating a bell curve. So if the volume profile is showing you like a bell curve, that means the day is going to be sideways. Very easy, nothing difficult in that. Or if the volume profile is showing something like what we are seeing now, basically clusters and then no volume in between, cluster, no volume in between, that is a clear indication of a direction for that particular day. If this direction was upside, then you will have this exactly reversed. Like in the beginning, you will have small volumes, and as the day progresses, you will have larger volumes of clusters in between smaller volumes. So that is a clear indication of a trending day. And similarly, there are two, three other patterns. Like if you have like there is one pattern wherein you have like this, and then it will again eventually sort of increase like this. So basically, people accumulated here, and then one side of it broke, and it will go away. That was the pattern again. So three, four patterns, you can easily make out what is going to happen. More often than not, these patterns will remain true. And I was trying to. So how to plot this volume profile, sir, on trading view? Uh, this is in this forecasting and measurement tool, sir. In this particular tool, you have fixed range volume profile. So once you select this fixed range Okay, volume sir. profile, you will have, I'll delete this so that I can tell you. So once you select this, you need to point at the candle from where you want to see the volume profile. So I usually point it at the first 5 minute candle of the day, which is this particular candle, and I leave it till the end. Now, once, let's say we are able to see the entire previous day's price behavior because it has already happened. Now, let's say you are actually putting it on the first 5 minute candle, then you will have to go into this particular settings and then take this inputs and you'll have to select this extend right. If you don't extend it right automatically, then it will only show you the volume in those two or three candle range that you have selected. If you want it to consecutively accommodate all the candles into this particular indicator, then select this extend right, and then as and when the price moves, the volume and POC also will move. Now, POC movement in the first 5 minutes will sort of give you a very good indication where to short and where to buy. Now, let's say I only put here, right? So you see this first 5 minute candle, it is right at the middle, which means first 5 minute candle, nobody has decided what to do. POC is right at the middle, and if you see the volumes also, they will be probably like a bell curve. So nothing to be done in the first 5 minute candle. Now let's take this up to the third candle. Now you see where did the POC go? POC was here, POC went up. POC went up, and the market is trying to take rejections on top. So that means volume has shifted from this particular point to this particular point. Although the volume has shifted, the price is not moving up. That means it is ready for rejection. So once this sort of movement POC happens, I take trades in the first half an hour or so based on this POC movement and the rejections that we see. So I entered somewhere here yesterday because POC moved up and there were two rejections.
and there was a continuous fall on this. So once this point was taken out, I entered this particular point, and my POC was stop loss, and I have traded somewhere till here. And when I saw this bullish engulfing, I got out here. That was the only trade on Friday. So you can use this like this. Now, as and when the candles move away, like from the first 2 or 3 candles, if you keep on changing, now you see this here. Now POC is here. It has accumulated a lot, but price again is not trying to go up. Every time the price comes to POC, it is getting rejected. That means sellers are still dominant. The same concept that we saw here. Volume is getting changed. It is trying to reach that POC line, but they are not able to do so. So again, sell on break of this, sit here. Again, if you extend it till this particular point, now you see, although it has come till here, POC is still at this particular point only. So you can keep on trading is what I am trying to say. If POC had shifted here, that means the day is closed. Let's say now we'll further see how the POC behaves at this particular. Still here, so you can trail. No point in quitting. Now, if you see at the end of the day, POC came here. That means whoever shorted, either they have booked it here or somebody have added more shots. Now, how to find out this is the next day price action, what I have said earlier. Let's say market opens here and it is not able to cross the yesterday's POC and you are getting rejection at that particular point, then again go short. So sellers are still dominant. So that is how you see POC, volume profile. Is that okay or do you need something else? Mr. Srinivas? That was your second question. So you said volume analysis for intraday. Now, the next question you asked was futures chart versus spot chart versus premium chart. So what exactly you want to know, sir, in this question? Hello. So we're not able to hear you. So before that, sir, you will see every 5 minutes volume profile for each 5 minutes every day. No, sir, that is what I told you. Like I apply it for the first 5 minutes and I select that option of extending it right automatically. So it keeps on extending. I don't need to extend it every 5 minutes. No, you see, that's what I'm asking you. You see after every 5 minutes. I only see when there is a change in POC. After every 5 minutes, you will only see changes in volume. You will not see change in POC. For the first 15 to 20 minutes, probably every 5 minutes the POC will change. But once that particular swing or a move is done, POC will hardly change 1 or 2 times a day. So whenever POC changes, that is the time I try to understand what the market is doing. No, but if you after you're plotting, you will come to know na POC change why can nahi. That's what I'm asking. Every 5 minutes you try to see this. That's what I'm. वो रहता ही है ना सर स्क्रीन पे तो I keep on observing. Okay, मैं ये वॉल्यूम का होते रहता है क्या? That is there. हाँ, ये Wait a volume minute. indicator, it is always there on my screen and I keep on observing always. Okay, every 5 minutes it is means plotting, right? हाँ. Means वो पूछना you चाह will रहे हैं कि come. Sir, ऑटोमेटिकली is this अपडेट होता feature है क्या? available in Zerodha? No, sir. I don't know why, but Zerodha does not have it. I mean, Zerodha gives you this indicator, but the volumes don't come up. I'll show you. So it has this provision of fixed range profile, but if you apply this market time, it won't give you. See, it is not giving you anything. I applied, but then nothing is coming up. Actually, it should be the other way around. TradingView is giving you this particular facility for free, and Zerodha, even after charging us, it is not giving. Basically, they have not integrated their volume ticks to this particular indicator. Zerodha is yet to do it. अच्छा हेमंत सर आप क्या पूछ रहे थे? मैं क्या बोल रहा था सर कि अभी फर्स्ट 5 minutes आई गॉट इट कि 5 मिनट पे आप देखते हो
हर 5 मिनट के बाद आप प्लॉट करके देखते हो क्या? इट्स ऑटोमेटिकली आते रहता है, दैट्स व्हाट आई हाँ, वाज वही मैं बोल रहा हूँ, टेलिंग। ऑटोमेटिकली आते रहता है। हाँ आपने एक बार फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पे प्लॉट लगा दिया और यहाँ पे ये हाँ सेटिंग में एक्सटेंड राइट का सेलेक्ट किया आपने, तो हाँ। जैसे जैसा 5 मिनट कैंडल बनते जाएंगे वैसा वैसा दिस इंडिकेटर विल टेक इनटू कंसिडरेशन दोस 5 मिनट्स आल्सो एंड इट विल कीप ऑन चेंज। सो यही बेस्ट है ना, सिर्फ यही सेटिंग बेस्ट है ना फिर, हाँ ये एक्सटेंड वाला, राइट? हाँ। नहीं, अभी मैं आपको समझाना चाहता था, इसके लिए वो एक्सटेंड हटा नहीं, दिया, बट परफेक्ट क्या है सर, ये इट इज आप एक्चुअली इट वाज नेसेसरी। उसने पूछा इसके लिए आपने इतना डिटेल बताया, तो दैट वाज द बेस्ट तो थिंग टू डू। वो पीओसी चेंज मोर और लेस हमेशा काम आता है फर्स्ट 15-20 मिनट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। वो दिन समझ जा, आपको फिर दिन समझ में आ जाता है कि दिन कैसा होने वाला हाँ वही ना सर, कितने कितने इंट्राडे वालों के लिए तो कितना अच्छा है। है। हाँ, और सर ये वेरी कोई पूछ रेयरली रहा ऐसा होता है कि हाँ। वेरी रेयरली ऐसा होता है कि पीओसी लाइन ने आपको बोला है बेरिश है या फिर ये टर्न होके उसको तोड़ के ऊपर चले जाता है। अगर वैसा हुआ तो ट्रेंडिंग वाला दिन ही होता है, और बहुत रेयरली होता है, लाइक 10 में से 1 या 2 बार। ओके ओके। तो उस Sir, टाइम स्टॉप लॉस how देके can we तुरंत रिवर्स करना differentiate पड़ेगा। this with sir? सर, How can we differentiate this with open interest, sir? So open interest also changes, no? सर ओपन इंटरेस्ट nowadays I am only trying to look at it as support and resistance level, that's it. Nothing much I infer from open interest these days. Open Okay, sir. interest, Okay. open interest, you will not get that dynamic behavior. Like you will have to wait till the end of the day, see what everybody else is doing, and then deduce open interest based on that. But this is, since you get it dynamically right at the point of trading, this is sort of a more accurate indicator than OI. Okay, sir. Okay. Sir, and your question that futures chart versus spot chart versus premium chart, like what did you want to Sir, know? yes, sir. See, see generally means actually there is difference between future chart and spot chart. Sir. If future charts is not moving, no, if even the spot chart is moving, the prices won't be much moving in the premium chart. Sir. So Yes, yes. either we need to follow future or spot. Which one is better? Sir, I always follow option charts only nowadays, not even future. I don't see futures at all because I already have 6, 7 different sources of information getting into my brain. So I don't want futures to be one something else. But as you have said, like if spot is moving and options are not moving, I usually don't trade those days because spot moves because of so many underlying things. Option moves only when somebody decides to make the market move. So my predominant entry point for trades is always behavior of option prices. Okay, sir. And then your last question was psychology after hitting a stop loss. So stop loss is a part and parcel. I mean, you'll have to become numb to this particular fact that you lost money because of stop loss. Until and unless you are not comfortable with losing money via stop loss, limit your quantity, give very small amount that doesn't bother you. Ultimately, the game is to not be Sir, affected by these losses, sir. I mean, if you get affected by these losses, you'll keep on losing. That is the only sir, game. generally what I'm doing is sir, I prefer to do intraday directional selling, sir, as Okay. a scalping. Okay, sir. So my capital is around 25 25 lakhs. Okay. Okay, maximum quantity which I'm doing is 10 lots. So if I enter the if I'm trying to enter the entire quantity means, so Okay. immediately if it's 10 points stop loss also, it will be around 7,500. From that point onwards, my mind is means I'm not able to cope up with the stop loss. So immediately I'm trying to recover it. So that's what happened. So that is what I'm saying. I mean, if you are not able to cope up with your stop loss, that means your stop loss amount is still high according to your psychology. You'll have to lower that. See, most of us trade anticipating certain amount of profit every day, isn't it? That is the wrong way to do. I will say get into a trade or start your trading day with a certain amount of loss in your mind. Like you should say to yourself, if your capital is 25 lakhs, you should say to yourself, I will not lose more than 20,000 today, come what may. And if you are losing 20,000, you should stop there, then and there. No point of trying to recover or doing trading again in the hope that you will recover. And the other thing is, since we are looking at market
all the time while it is running, it is very easy to tell yourself that whatever you thought was wrong and the market is going against you. But when you take that trade, assuming that market is going to against you, it will ultimately go in your favor, and then you will feel no, market is risky and you cannot do anything and all that. So what I'm trying to say is, before you start trading or before you come to the day to start trading, have this amount in your mind where you say, even if this much goes today, that is okay with me, I'll stop. There is no question of recovering what you lost on the same day. No, you try to do that the next day. So what will happen is, in between, you'll have time to contemplate what went wrong yesterday, or most of the times, losses in my case, most of the times how they happen is, let's say you asked me in the initial stages of this call that how do you confirm trade? Now I said bullish, and based on that, I took a bullish trade at a major support. Now market decided to turn its direction from bullish to bearish, and it broke that support and went down. So it is a stop loss that I have to take. No other way around it. Now the point is, what I'm trying to say is, market took my stop loss because it is trying to change trend, and then I gave it a stop loss. But if I would have given it a stop loss when the market is going in my direction, that is the wrong psychology that I have developed, and I want to get out of this particular trap as soon as possible. Otherwise, I'll keep on doing the same thing. So here also the same. So if your stop loss is being taken by market, even after all of your planning and execution as per what you planned and in the trend that the market was till that particular point of time, then also if it is taking stop loss, then leave it, because one or the other day it will give you more than that. That is for sure. But if you try to change your buy order into sell order just because market in intraday has gone against you and then you want to recover the stop loss, then that is where we keep on repeating the mistakes and the losses will cascade. So keep this in mind, that if market is changing direction and that is why you have given stop loss, that is absolutely fine. That happens to everybody. There is no trader in the world who won't have his stop loss taken. Not possible. So those Okay, were your questions. Anybody else? Those were the only questions, sir, from you. If you want to ask something else, we can do that, or otherwise I'll ask somebody else if they have any doubts. that's it, sir. Okay. So if सर anybody else, yeah. सर मेरा मेजर सबके लिए ये मीन्स सबके लिए यही क्वेश्चन है, लेकिन पर्टिकुलरली एज अ मास्टर, एज अ योर एक्सपीरियंस, जस्ट यू कैन इफ टेल द प्रॉपर दिस थिंग कि अभी समझो आज मार्केट 100 पॉइंट नीचे खुला है, वॉट एवर इट इज, गैप डाउन, गैप अप, वॉट एवर इट इज, Okay. after opening, how many times that market nifty, particular nifty spot, कि उससे 100 पॉइंट नीचे या ऊपर जाता है, कितने परसेंटेज वाइज, ये मेरा क्वेश्चन है. और मैंने एक बंदा देखा है सर, दिस इज पर्टिकुलर यू एंड मी, इफ यू आर डूइंग बिग दिस थिंग क्वांटिटी के साथ, वो सिर्फ एडजस्टमेंट के वजह से ही इज अर्निंग मनी, दैट्स ऑल. मैं क्या पूछ रहा हूँ सर कि अभी मैंने 100 पॉइंट, मार्केट कितना भी 200-300 पॉइंट नीचे खुला या 50 पॉइंट नीचे खुला है, उससे 100 पॉइंट कितने बार नीचे या ऊपर जाता है सर, दैट परसेंटेज वाइज. और इज इट एडवाइजेबल यू कि एवरेज करते रहो, और कितने टाइम प्रॉफिटेबल हो सकता है परसेंटेज वाइज. इफ माई स्टॉप लॉस, समझो आज का एक स्टॉप लॉस मैंने फिक्स कर लिया है 1% ऑफ माई टोटल कैपिटल से 10 लाख रुपीज, मेरा फिक्स स्टॉप लॉस फिक्स है सर, दैट इज नॉट अ, उसमें चेंज नहीं है, लेकिन सर कितने. आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इट डिपेंड्स कि वे कहाँ पे मार्केट है, क्योंकि अभी जैसे कंसोलिडेशन जैसे मोड में चल रहा है पिछले 2-3 महीने में, वैसे जो आप स्ट्रेटेजी बोल रहे हो एडजस्टमेंट वाला, दैट वर्क्स बेस्ट, बिकॉज एक ही रेंज में है, अगर आपसे थोड़ा अगेंस्ट भी खुल गया, आप आपके एक लेग को थोड़ा दूर लेके चले जाओ, अल्टीमेटली वो रेंज में आ जाएगा एंड देन यू विल अर्न प्रॉफिट ऑन बोथ साइड्स. कंसोलिडेशन वाले मार्केट में आप जो बोल रहे हो वैसे एडजस्टमेंट करके आराम से पैसा हो सकता है, लेकिन ट्रेंडिंग वाले में आप उसी को बोलो कि एडजस्ट करते रहो तो उसका अकाउंट खाली हो जाएगा. हाँ, बराबर तो है सर. तो वही है सर, अल्टीमेटली मार्केट एक, आपको मार्केट का अंडरटोन पता होना चाहिए. अभी जैसा कल के केस में ही ले लो, आप कल अगर समझ लो मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन खुलने वाला है, तो आप क्या करोगे. बेसिकली एक डेली में चलते हैं.
अभी आप समझो मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन खुलने वाला है बेसिकली यहाँ पे 25,900 पे खुलेगा समझो आप कल। तो आपका इनिशियल रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ पे शॉर्ट करो या यहाँ पे लॉन्ग जाओ या छोड़ दे, थोड़ा टाइम 1 घंटे के बाद देखते हैं। हाँ सर, आप वहाँ पे क्या करोगे 100 पॉइंट्स गैप डाउन पे कल? सर आप म्यूट पे हो। जैसा सर मूविंग एवरेज जैसा दिखेगा ना सर, हम्म। जो डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में आई विल ट्राई टू टेक अ ट्रेड इन दैट केस इफ आई एम नॉट इन अ ट्रेड। आई एम ओके। आस्किंग यू कि इफ आई एम इन ट्रेड तो ही इश्यू होता है, जब ट्रेड में नहीं रहेगा तो आई विल नॉट टेक अगेंस्ट द ट्रेंड ना। हम्म। आफ्टर टेकिंग द ट्रेंड, जब आप बोलते कि सर आपने ट्रेड लिया है एज पर एग्जैक्टली प्रॉपरली एज पर योर सेटअप, लेकिन इमीडिएटली वो ट्रेंड चेंज हो सकता है ना सर, कुछ भी मींस इंट्राडे कुछ भी हो सकता है। तो इफ आफ्टर आपके ट्रेंड चेंज हुआ है तो कितना अपन एडजस्ट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, दैट्स व्हाट परसेंटेज वाइज कितना सक्सेस रेट है उसका, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ओके सर, वो ये वाला तो आप नेवर ऑब्जर्व कि कितने टाइम पे ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि मैंने एक बंदा देखा है सर, ही इज 99% प्रॉफिटेबल इन दैट बिकॉज हिज कैपिटल इज मोर, बट हम्म। हार्डली, मेरे को सिर्फ समझना चाहता था वो कि कितने टाइम वो रॉन्ग जाता है ओके। परसेंटेज वाइज। मीन्स बैक टेस्ट ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या सर ऐसा? वो तो परिष्का जी बता पाएंगे, बैक टेस्ट तो वही करते हैं। ओके मैंने तो आज तक कभी बैक टेस्ट नहीं किया। ओके परिष्का ओके, जी नहीं आप वो क्योंकि निकाल सकते हो क्या पैरामीटर? क्योंकि सर मैं बहुत एवरेज करता हूँ ना सर, इसके लिए आई एम जस्ट पर्टिकुलर, इस पे मेरे को बहुत चाहिए था आंसर दूसरा। ओके। आप एक बार अपने कंडीशन मुझे भेज दीजिएगा, मैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं उसको बैक टेस्ट करके आपको बता दूंगा। आपके क्राइटेरिया सारी पूरी बता दीजिएगा मुझे एक बार। ओके ओके, क्राइटेरिया मीन्स वही ना, समझो मैंने लिया है ट्रेड मेरे नहीं, सेटअप के लिए। आप एज अ रिटर्न करिए, उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे पाइन स्क्रिप्ट या उस पे बनाने हाँ हाँ, की, ओके ओके। और उसको फिर क्या कहते हैं मतलब यानी स्टैटिस्टिकली कोशिश करता हूँ कि कितने बार चला है, अगर वो हो हाँ सकता है मेरे से तो। हाँ, नहीं चलता रहे तो इट इज नो यूज ना, चलो उधर स्टॉप लॉस ले लो और नहीं नहीं खत्म सर, कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूँ कि मैं कर पाऊंगा उसे नहीं कर हाँ पाऊंगा आप बराबर है सर, आपने बोलने के बाद ही मैं ये कर सकता हूँ कि बाबा चलो ये ट्रेड नहीं एवरेज करना है, आप छोड़ दो अपने इसको। सारे कंडीशंस मुझे लिख कर दे दीजिएगा प्रॉपरली, और या फिर उसको फिर मैं अप्लाई करके देखूंगा एक बार। या आई विल डू दैट, थैंक यू। थैंक यू। Anybody else if somebody else out? और दूसरा सर एक क्वेश्चन मेजर है कि आप ट्रेड आपने अपने लिया एज पर सेटअप और वो एक आपके अगेंस्ट गया है, तो उसको इमीडिएटली दूसरे में कॉल लिया है और वो ट्रेड मार्केट नीचे जा रहा है, इमीडिएटली पुट कैसा बाय करना है वो सिखाओ हमको, ये सर कॉल में से बाहर वो जाके। अच्छा, वो सर हर हर रोज हर जगह पे नहीं कर सकते, वो हमेशा इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रेजिस्टेंसेस पे ही ऐसा आप ले सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रेजिस्टेंस में ऐसा मार्केट करता है कि वो दिखाता है आपको कि मैं तोड़ रहा हूँ और तुरंत पलट जाता है। वैसे सिचुएशंस में रिवर्स करने से बहुत पैसा बनता है, लेकिन हर जगह पे जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए आपको लगा कि ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ गया, तो ये ऊपर जाने वाला ट्रेड से तुरंत नीचे आने वाला ट्रेड तब का तब तो नहीं बनता है, क्योंकि उस टाइम तक तो मार्केट बुलिश था। अगर नहीं नहीं, यही आपका बराबर है सर, नहीं मैं बोल रहा हूँ ये अभी बड़ा लाइन आपने जो रेड रेड कैंडल है ना, ये वाला और ये ग्रीन वाले में मैंने ट्रेड लिया है, बराबर है, कॉल का ग्रीन वाले में वही ये आपका समझ, उसके पहले, हाँ हाँ समझो उधर लिया है। समझ लीजिए इधर उसके, ही है, हाँ। हाँ तो उसके बाद ये रेड वाला हुआ है, हम्म। ये बड़ा बड़ा हम्म। कैंडल, राइट। तो हम्म। मैं क्या करता हूँ कि मैंने बुलिश लिया तो मैं एवरेज करते रहता हूँ ना, हम्म। नीचे में कॉल कॉल में ये। हम्म। तो कब ऐसा करना चाहिए कि नहीं बाबा ये नहीं हो रहा है और इमीडिएट यू शुड स्क्वायर ऑफ योर कॉल पोजीशन, टेक अप पुट पोजीशन। तो लेकिन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे कॉल लिया ही क्यों था आपने? अगर समझ लीजिए ये कैरी फॉरवर्ड होता, ये वाला ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे आपने कॉल लिया, तब तो फिर भी समझ में आता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। हाँ वही वही, नहीं नहीं परफेक्ट, मैंने जस्ट आई एम जस्ट फॉर तो हाँ एग्जांपल आई एम हाँ सर, सेइंग इस केस ग्रीन। में
ठीक है, इस केस में समझ लीजिए यहाँ पे ये यही यहाँ से टर्न नहीं हुआ, समझ लीजिए यहाँ से धीरे 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 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये दिख रहा है आपको ट्रेंड लाइन ऊपर से कंटिन्यूअसली कल से फॉलो हो रहा है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया इसने अभी परफेक्ट उधर ट्रेड लिया मैंने, राइट? हाँ, हाँ, ये ब्रेक दिया और आपने ट्रेड लिया, समझ लीजिए। अभी ब्रेक के बाद आपने ट्रेड लिया, एक एक या दो ही कंडीशन हो सकता है। एक तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये जा ही रहा है आपके कंडीशन में, तो कोई मतलब फायदा, मतलब कोई आप सोचने का बात नहीं है, आप कंटिन्यू करोगे उसको। अगर समझ लीजिए यहाँ पे आपने लिया, फिर यहाँ से आया, ये वाले ट्रेंड लाइन पे रिवर्स लिया और फिर ऊपर जा रहा है, तो भी वो ब्रेक के बाद रीटेस्ट हो गया, रीटेस्ट से आपके डायरेक्शन में जा रहा है, फिर भी आप बैठोगे। अभी आप समझ लीजिए ये यहाँ इससे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट होने से पहले ये यहाँ पर भी एक पक्का स्विंग रहेगा, या वो एक कैंडल का स्विंग हो सकता है या तो ये दो कैंडल का स्विंग हो सकता है। अगर ब्रेकआउट करने के बाद, आपके ट्रेड लेने के बाद ये वाले जो स्विंग है उसको तोड़ के नीचे आ रहा है, तो आप पहले ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे, यस पलटोगे यस, नहीं। कॉल से पुट में पलटोगे नहीं, कॉल से पुट में पलटोगे कभी जब ये वाला कैंडल का लो टूट जाए, वो भी तुरंत टूट जाए, ओके ओके, आई गॉट इट। तभी पलटेंगे पुट में। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वापस यहाँ पे आके ऐसे ऐसे टाइम पास करके खत्म कर दे। मोस्टली वो जो रिवर्सल्स आप जो बोल रहे हो ना सर, कि मार्केट एक कंडीशन में और फटाक से दूसरे कंडीशन में चला गया, वो हर जगह वो सब वो ढूंढ के फायदा नहीं है। वो सिर्फ आप मेन मेजर सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल पे ढूंढिए, आपको काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। हर जगह मिलेगा तो वापस वही प्रोबेबिलिटी, 50% आपके फेवर में, 50% आपके अगेंस्ट, एंड देन तो कॉस्ट बढ़ जाता है। बराबर। जैसे इन दिस सिनेरियो अगला वैसा लेवल कभी है मैं बताता हूँ। ये वाले लेवल्स पे जब अगली बार आएगा ना मार्केट 25,750 या 760, तब आप देखिए कि ये तोड़ रहा है कि रिवर्स हो रहा है। अगर ये तोड़ के रिवर्स हो रहा है तब आप बैठ जाइए, वापस ऊपर तक आएगा आपका 26,200 तक। बट हर जगह पे वैसा ढूंढना मुश्किल है, मतलब आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो उल्टा हो गया, नहीं तो वैसा। ओके, थैंक यू। अभी तो ये परफेक्ट मेरे को शॉर्ट पे बिठाया करके लग रहा है मार्केट, ये नीचे गिरने के लिए नहीं आया मार्केट। ये वाला जो गैप था वो फिल कर दिया मार्केट ने, और ये मुझे लग सपोर्ट रहा का है वो भी। ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आ रहा है सर, निफ्टी का जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, ये वाला ना, उसको रिटेस्ट करने आ रहा है। जैसे बैंक बीएनएफ में हो गया है रिटेस्ट, हाँ। बट थोड़ा वो नीचे जाएगा। जो आपने सपोर्ट थोड़ी देर पहले बीएनएफ में बोला था ना, वहां तक आके फिर रिवर्स करेगा लग रहा है मुझे। हाँ वही, वो बीएनएफ अपने सपोर्ट पे आएगा, ये इसके ट्रेंड लाइन पे आ जाएगा और हाँ, सपोर्ट ट्रेंड लेके लाइन आगे। पे सपोर्ट लेके वो ऊपर जाएगा, हम्म, क्योंकि ये परफेक्ट डब्ल्यू बना है। और वो वहां जहाँ बाइंग किया ना गैप अप में, हम्म। वो उनको और थोड़ा उधर बाइंग आएगा शायद से, मुझे मतलब मेरा ये लग रहा मेरे को तो यही पे हो गया लगता है, क्योंकि ये जो कैंडल फॉर्मेशन बना है ना, एक वीक का दूसरा वीक और आर्ली पे, मुझे लग रहा है। है हाँ ये वाले सपोर्ट पे ही बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस रखा होगा, क्योंकि मार्केट गैप अप करके उड़ गया था, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होंगे जिनको भी लगा होगा कि ब्रेकआउट हो गया, तो वो खाने के ये लिए आ सब। गया। अभी जब खा गया तो मेरे ख्याल से रिवर्स हो जाएगा। एंड हाँ ये जो वो ऊपर से कंटिन्यूअसली गिर रहा है, ये वाले सपोर्ट को इतने आसानी से तोड़ेगा नहीं, एक या तो यहाँ से आके तोड़ेगा या फिर साइडवेज होके तोड़ेगा। कल मेरे को रिवर्सल ही लग रहा है मंडे को ऊपर की तरफ, अगर पीओसी कंफर्म कर लेता है तो कल ले सकते थैंक यू सर। मैं बहुत हेवी क्वांटिटी में कॉल में बैठा हूँ, कभी नहीं तो मैं पोजिशनल इतना करता नहीं। क्योंकि मैंने वही क्यों पूछ रहा सर, इधर आपको दिख रहा है ये डे हाँ। बिफोर यस्टरडे मैंने कॉल लिया है, उसको मैंने एवरेज करते करते अभी मेरा क्वांटिटी हुआ है, तो मेरे को लगा कि थोड़ा भी 20-30 पॉइंट भी पलटा तो मेरा प्रॉफिट में आएगा। तो एक्चुअली दैट वाज अ रॉन्ग डूइंग, बट जस्ट टेलिंग, क्योंकि मेरे पास कैपिटल तो मैं कॉल ले सकता हूँ ना कभी वो घूमेगा तो जितना नीचे जाता है उतना बड़ा एवरेज हो रहा है। और जस्ट गिफ्ट निफ्टी भी तो अच्छा खासा ही बंद हुआ है, हम लोग बंद यहाँ पे हुए थे 62 और 120, 60 पॉइंट्स से ऊपर ही है गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी, 55-60 पॉइंट। ओपनिंग चाहिए ना गिफ्ट। नहीं, अगर आपने देखा है हाल फिलहाल में, जब भी गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन दिखाता है वो ओपनिंग वैसा नहीं होता है, जब गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखाता है वो ओपनिंग वैसा ही होता है। ओके ओके, और अपने को 15-20 पॉइंट्स इज इनफ सर, लेकिन क्वांटिटी बहुत है तो इसके लिए मैं जा रहा तो आप था। बाई बाई करके बैठे हो या सेल में हो आप? कॉल कॉल बाय किया है सर।
लेकिन इन द मनी है ऑलमोस्ट एज अ फ्यूचर का, उसमें प्रीमियम 0 है ऑलमोस्ट, ओके। मीन्स यू गॉट इट ना। हाँ हाँ। हाँ 15,500 का मेरा कॉल है, 25 25,500। ओके। तो ऐसे भी प्रीमियम ज्यादा नहीं होगा ऑलरेडी। प्रीमियम ज्यादा नहीं सर, 7-8-10 पॉइंट मेरा, आई थिंक 10 या कुछ पॉइंट रहेगा। आपने काफी इन द मनी लिया 560, इतना नीचे आके ले लिया आपने। सर मैं 300-400 पॉइंट लेता हूँ वैसे भी। ओके। नहीं मैं तो ये तो इसके लिए लिया है कि मार्केट नीचे आया ना, तो पहला 25,700 और 800 था, 25,000 हाँ। 700 और 800 का किया है। हम्म। अभी 25 लास्ट कल शाम को मीन्स फ्राइडे को आफ्टरनून में 25,500 का किया है। सो आई हैव अच्छा, तो 3 आप कॉल्स अभी नाउ। आपने हाल फिलहाल में लिया ट्रेड, मतलब कैरी आप बहुत पहले का नहीं परसों है? थर्सडे को सर। अच्छा, ओके सर, ओके। और आपने लेने के थर्सडे, बाद जब क्लोजिंग हुआ तो मार्केट आपके फेवर में बंद हुआ या आपके अगेंस्ट में बंद हुआ, आपके? नहीं नहीं अगेंस्ट है, अगेंस्ट है, ऑलमोस्ट आई एम लॉस्ट है 15-20 पॉइंट के अगेंस्ट में। ओके। लेकिन अभी क्वांटिटी बढ़ा है तो इसके लिए। तो एनीबडी एल्स? सर वो साइकोलॉजी का ही थोड़ा सा इशू हो रहा है सर, उसका कुछ मतलब कि जैसे अभी मेरे को पता है, आई नो द टेक्निकल्स एंड ऑल, बट वो मार्केट में हड़बड़ी हो रहा है सर। तो मतलब आप हड़बड़ी मतलब आप ट्रेड छूट रहा है आपका या प्रॉफिट छूट नहीं रहा है? नहीं, ट्रेड छूट रहा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखा मैंने कि हाँ मुझे ईएमए के रिजेक्शन से लेना है ट्रेड, ओके सर। बट मैं वेट नहीं कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कल का जो सर का आप बता रहे थे ना, ये बिग रेड कैंडल पे, हाँ। तो मेरे ईएमए के सेटअप पे तो वो नहीं आया था कि ओके। रिजेक्शन ले रहा है वो, बट वो ओके। मुझे दिख गया है कि नहीं रेड कैंडल आ रहा है, तो आई टुक द ट्रेड। ऐसे मतलब कि सेटअप आने से पहले ही थोड़ा हड़बड़ी में ये हो रहा है। आई नो द टेक्निकल्स, वो भी मतलब कि पता है कि हाँ यहाँ से रिवर्स करेगा। इवन होल्डिंग का भी ये हो रहा है, जैसे कल पता था कि नहीं कल गिरने ही वाला है मार्केट, कुछ भी हो जाए, वो थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, हम्म। बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू होल्ड। तो वो थोड़ा ये हो रहा है सर, साइकोलॉजी में ही मेन है, बाकी टेक्निकल्स तो इतना कुछ नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। तो मतलब आप होल्ड क्यों नहीं कर पा रहे हो, कि कन्विक्शन नहीं आ रहा है आपके फेवर में जाएगा वैसा? नहीं वो सर कैसे हो रहा है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को दिख रहा है कि आई एम इन प्रॉफिट ऑफ 30 पॉइंट्स वगैरह, हम्म। तो ऐसे लगता है कि ये रिवर्स हो जाएगा तो ये भी चला जाएगा, ऐसे लगता है। क्योंकि जैसे अभी देखा है अपनी बिग रेड कैंडल के बाद में यहाँ आके नीचे थोड़ा कंसोलिडेट किया, हम्म। तो वहां भी पता था मुझे कि नीचे गिरेगा, ये टाइम पास कर रहा है क्योंकि ये सब मतलब कॉल्स को होप दे रहा है, बट नीचे गिरेगा क्योंकि मेरा ईएमआई का सेटअप भी वही कर रहा था। हम्म। बट वो 30 पॉइंट्स का जब लॉस मतलब प्रॉफिट 10 पॉइंट्स या 8 पॉइंट्स पे आ जाता है आफ्टर सम पॉइंट, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है या फिर थोड़ा सर आप रिवर्सल आप दिखा रहा बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो सर? है। बाइंग 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 सर। सर वो बाइंग में और कुछ नहीं कर सकते, वो आपको कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा। क्योंकि बाइंग में आपने जैसा बोला है कि एक भी कैंडल आपके अगेंस्ट में जाता है, वो प्रीमियम एकदम से आपके बाइंग प्राइस हाँ के रिवर्स आसपास हो आ जाता जाता है। है, राइट। वही तो इशू है तो सर। मेरा वही रीजन था, मैं बाइंग से सेलिंग में शिफ्ट किया। छोटे क्वांटिटी में इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े क्वांटिटी में जब आपके अगेंस्ट में वो जाता है, एक भी कैंडल उल्टा हो जाता है ट्रेंड के अगेंस्ट और पूरा बाइंग प्रीमियम गिर जाता है, तो समझ में नहीं आता उधर। उस आप सही बोल रहे हो, सेलिंग में हाँ वो समझ में आता है आपको। इंस्टेंटली रिग्रेट फील होता है सर, मतलब 30 पॉइंट्स हाँ, का दिख रहा यस है यस। प्रॉफिट एंड आई इट कैन गोज टू अंडरस्टैंड, 10 पॉइंट्स, यस तो यस मतलब वो होल्डिंग कैपेसिटी ये कर देता है। यस। देखो ना अभी सर मैं मतलब इसीलिए सेलिंग कंसोलिडेट में आया हूँ किया। सर। मैं दैट इज द ओनली रीजन आई केम टू सेलिंग, आप जो बोल रहे हो वो, क्या बोलते हैं उसको, वो इंस्टेंट जो आपको डर लगने लगता है ना कि प्रीमियम पूरा गिर हम्म। गया, प्रॉफिट पूरा चला गया, वो छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। और वो जब बोला ना हड़बड़ी वाला, तो मतलब मेन टेक्निकल का कुछ है ही नहीं, टेक्निकल चलो यस। मतलब उसमें मैं गलत हुआ तो भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट जो साइकोलॉजी है ना वही थोड़ा सा हिल जा रहा है कि हम्म। बाइंग में। तो तो अभी आप व्हाट्स कितना दिस। कितने लॉट बाई करते हो? मैं सर 2 या 3 लॉट पे ही करता हूँ मैक्स टू मैक्स। तो वो तो आप सेलिंग में भी कर पाओगे नहीं? तीन नहीं लॉट मतलब बेचने के उतना लिए कितना? कैपिटल डालने में थोड़ा सा ये कर रहा हूँ ना मैं,
अभी मिनिमम अगर आपके जैसा ये भी करोगे तो निफ्टी में जा रहे हो अभी हम्म। एक लॉट के लिए कर लो सर आप, मतलब देख लो। हाँ वही वही। तो 70-80 के अराउंड लगता है उसको। नेकेड सेलिंग तो 2 लाख के आसपास जाएगा वो। हाँ कितना, तो 60,000, 60,000 हाँ, जाता ये आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, मतलब 1 के अराउंड तो आपको डालना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा डर रहा हूँ कि इतना कैपिटल अभी डालूं, क्योंकि आई मीन लॉस, तो मुझे वो है। थोड़ा सा ये बैठ गया है, डर बैठ गया है कि ज्यादा अमाउंट डालूंगा तो साइकोलॉजी हिल गया तो थोड़ा ये हो जाएगा, इसलिए। सर वो तो आप ये जो बोल रहे हो इनिशियल मेरे से भी ऐसे ही होता था, बट लकीली वहां पे क्या था कि 2021 2022 वो सब टाइम पे ब्रेकआउट्स बहुत प्रोनाउंस्ड मिलते थे, मतलब आपके हाँ, वो डायरेक्शन में डायरेक्शनल ट्रेड। था ना, मतलब जो भी हाँ है सीधा दे रहा है मूव। हाँ बहुत प्रोनाउंस्ड मिलते थे, तो उसमें बाइंग में ज्यादा मतलब इतना डर नहीं लगता था जितना आज लग रहा है। तो मैं तो आपको बोलूंगा अगर वो उसको हटाना है, मतलब सिर्फ आपका यही एक रीजन है कि थोड़ा सा भी एक कैंडल उल्टा हो रहा है और प्रीमियम गिर रहा है, तो आपको लग रहा है कि रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी सेलिंग में शिफ्ट हो जाओ। वो निकल जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा वैसे ही निकला था। ओके सर। यस सर, सही है, सही बोला। हाँ, एंड व्हाट अबाउट वो, मतलब सेटअप का वेट करने का, जैसे तो मतलब सेटअप का वेट करने का मतलब। मतलब मैं बोला ना आपको कि मेरा अगर ईएमए से रिवर्सल का सेटअप है, हम्म। बट बिफोर दैट अगर कोई मेरे को केओस दिख रहा है तो सर छोड़ दो, वो। नहीं जब तक आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं दिख रहा है आप मत करो, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि फिर वही है ना, हम सब चेस करने लग जाएंगे फिर। हम लोग एक इंडिकेशन या सेटअप बनाते हैं इसलिए ताकि आप फिल्टर कर सको ट्रेड्स। ओके। अगर जब तक वो आपके क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है आप मत करो ट्रेड, भले 100 पॉइंट चले जाए 150 पॉइंट चले जाए, नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप एक बार आपका क्राइटेरिया छोड़ के दूसरे ट्रेड्स भी लेने लग जाओगे तो उसका फिर कोई टॉप नहीं है, मतलब अल्टी बहुत ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, हर जगह आपको सेटअप दिखने लगेगा। या इवन दो वी मेक प्रॉफिट, वो अंदर से सेटिस्फेक्शन भी नहीं आता है उतने हाँ की। एग्जैक्टली। तो जब तक आपके सेटअप पे सब रिस्ट्रिक्ट मतलब सब कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा है तो आप ट्रेड मत लो, नहीं। या और ऊपर से मतलब हम सब लोगों ने ये स्टेज में पहुंचने के लिए इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को सुना होगा, उन सबके स्ट्रेटेजीज सुने होंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर आधे घंटे में आपको एक एक किसी बंदे का एक स्ट्रेटेजी दिखेगा। यस, बट ऑब्वियसली। बट क्योंकि वो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड वाला नहीं है, वो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करके भी हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अंदर से कंफर्ट नहीं आता। तो जो आपने एक सेटअप बना लिया, जब तक वो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है आप मत लो ट्रेड। ओके सर। सो वही है, साइकोलॉजी ही मेन है, वही थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, बाकी तो सर टेक्निकल में आप तो। मानोगे नहीं, जब इनिशियल इनिशियल डेज में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में था, लेकिन वो जो मार्केट में वो मोड नहीं आता है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट से कंसोलिडेशन हो जाता था बहुत दिनों यस तक। यस। तो इनिशियल डेज में मेरा बहुत दिमाग खराब होता था कि यार इतना ज्यादा कमा लिया है, लास्ट 2-3 महीने से क्यों नहीं हो रहा है, मेरा स्ट्रैटेजी गलत है करके आई यूज टू स्क्रू अराउंड अलॉट। और हर जब भी मैंने वैसा किया है कि स्ट्रैटेजी से थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं या इसकी सुनते हैं या उसकी सुनते हैं, मेरा ड्रॉडाउन ही हुआ है, भला कभी हुआ ही नहीं है। तो एक बार आपने एक स्ट्रैटेजी फिक्स कर लिया, और आपको फिक्स करना तो आसान है सर, बट द अल्टीमेट थिंग इज वो स्ट्रैटेजी आपको मतलब समझ आ रहा है और आप कंफर्टेबल हो उसको फॉलो करने में, तो आप मत बदलो, किसी को बोलो ही मत कि मेरा स्ट्रैटेजी ये है। अगर वो बोलेगा कि मेरा इतना अच्छा है, मैं 100 गुना रिटर्न बनाता हूँ 50 गुना रिटर्न बनाता हूँ, उसको बोलो तू बना ले भाई, बट मुझे सेट नहीं होता तेरा स्ट्रैटेजी। तो कोई फायदा नहीं है यस। उसका किसी और का सुन के, आपको जो कंफर्टेबल हो और पैसा बन रहा है तो आप स्टिक करो, बस उसी को आराम आराम से फाइन ट्यून करो, लाइक 2-3 महीने में एक बार रिवाइज करो या फिर ऐसा कुछ, बट किसी और का स्ट्रेटेजी नहीं सुनेगा वो। दैट इज द प्राइमरी बेसिक थिंग इन ट्रेडिंग, क्योंकि वो उसके स्ट्रेटेजी का उसको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, बट अपने को आने में और 4-5 महीने लग जाएंगे, आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते करते कॉन्फिडेंस आते आते। ओके सर। नहीं, स्ट्रैटेजी का तो कुछ है नहीं सर, कि मतलब कि इसका मतलब देख के चेंज कर लिया वो हाँ वगैरह। वही सर। तो वो थोड़ा। सर आप कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो, मार्केट साइकिल के हिसाब से स्ट्रेटेजी के भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस साइकिल्स बदलते ही बदलते हैं। अभी यस ट्रिक यस। ये है कि आप कम लूज करो और ज्यादा गेन करो, बस वही इतना ही ट्रिक है ट्रेडिंग में, और कुछ नहीं है। आर ही मेन है। बस
जब ओके सर। वो सब लोग बोलते होंगे कि कंसोलिडेशन साइकिल में मैं स्टैडल बेचूंगा और ट्रेंडिंग साइकिल में मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा। जब तक उसको पता चलेगा कि भाई तो कंसोलिडेशन हम्म। साइकिल में है, वो ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन पूरा प्रॉफिट चला गया होगा उसका। प्रॉपर्टी, हाँ, यस यस। और वैसे ही होता है, फिर वो स्टैडल में आता है और जैसे ही वो स्टैडल में कंफर्टेबल होने लगता है, एक दिन मार्केट ट्रेंड करेगा और उसका पूरा स्टैडल का प्रॉफिट चला जाएगा। यस वो सर, हमेशा ओके वैसे ही होता है। आप ओके। बाकी स्ट्रेटेजीज फॉलो करने से अच्छा, जैसे मैंने बताया कि पहले डे के 15 20 25 मिनट में आप अपने आप से मतलब वो इनकलकेट कीजिए कि आपको पता चल जाना चाहिए 20 25 मिनट बाद कि डे में ट्रेंड होने वाला है या साइडवेज होने वाला है। और फिर हम्म। आप देखिए आपका स्ट्रेटेजी जो है साइडवेज में कितना पॉइंट देता है और ट्रेंडिंग में कितना पॉइंट देता है, बस उतने के लिए बैठने का और निकल जाने का, खत्म। उससे ज्यादा नहीं। ओके सर, यस, आई थिंक वही है। और सर मुझे मतलब एक मतलब ये देना था। आई हैव स्टडीड ईएमएस थोड़ा सा, तो आपने बोला था ना कि आपको कुछ स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस करना है, तो मतलब कि लॉन्ग टर्म जो, मतलब आई डोंट नो ये डिस्कस करना प्रॉपर है या नहीं, तो मतलब ये सजेशन टाइप नहीं दे रहा हूँ मैं किसी को, बस बोल रहा हूँ। तो ईएमएस जो है ना, मैं आई फॉलो लाइक 5 ईएमएस। ओके सर। ये 9, 20, 50, 100 एंड 200। ओके। तो ये जब आप, हाँ, ये ऐसा वाला, तो ये जो मतलब जितना भी हाईएस्ट पीरियड में आप जाओगे ना, हम्म। तो वो पीरियड में आपको वो ज़्यादा ये देता है। जैसे फॉर एग्जांपल वी कंसीडर अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम्म। तो वो केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक सपोर्ट को या फिर एक रेजिस्टेंस को 3 बार टेस्ट करने के बाद में वो तोड़ देता है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो वैसे केस में ही मैं ईएमएस को फॉलो करता हूँ एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट ओके। टाइम जब आएगा उसके पास में तो ऑब्वियसली रिवर्स लेगा, ऐसा मेरा ये है, यस। एक्सेप्ट द एक्सपायरीज। यस। मतलब ये मैंने मतलब सर से पढ़ा है एक, मतलब यस, एक मेरा भी टिप। वैसे ही है सर। आपने पहले भी सुना होगा, आई यूज ईएमएस एंड सीपीआरस टू एग्जिट फ्रॉम ट्रेड्स, नॉट एंट्री। ओके। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी आपने जैसा बताया, फर्स्ट टाइम दे कम टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वो हमेशा रिएक्ट करता है, इसलिए एग्जिट यस सर। ट्रेड्स बेस्ड ऑन दोस। हाँ, तो ये मतलब मैंने इवन कोई ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर रहा है ना, तो आप हम्म। अगर देखोगे तो निफ्टी का मंथली या फिर इसमें तो वो ईएमएस के जब भी पास में आता है ना, वो हम्म। 100% रिवर्सल लेता ही लेता है। यस। 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 बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि वो तोड़ देगा। यस। तो मतलब किसी को अगर, आपने बोला था ना कि स्ट्रेटेजी वगैरह डिस्कस करना है, तो मैं उसके लिए बस जस्ट ये बता रहा हूँ कि या मैंने ये पढ़ा था। इवन यस। 200 वगैरह, 200 के पास तो अभी आए नहीं, तो वीकली और मंथली तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। हाँ। ये यस। इंडेक्स के लिए, यस। इंडेक्स के लिए तो बहुत ही है। जैसे आप देख रहे हो 20 के पास मतलब 20 आ, के आसपास भी नहीं है हाँ, एग्जैक्ट। आसपास घूमेगा फिर वापस रिवर्सल करेंगे। हम्म। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, अगर किसी को करना रहता है तो वो कर यस। सकते यस। हैं। Yes. ये अच्छा है। अभी कितने लोग फॉलो करेंगे पता नहीं, बट दिस, हाँ, I mean, for वो तो swing मैंने, trading with EMAs makes a lot of sense. यस यस, वो मतलब मैंने तो 5 इसका सेटअप ही कर लिया है, 9, 20, 50, 100 एंड 200। वो सर ने हाँ। भी मतलब वो बोला था। हाँ, तो मेरा एंड 5 5 20 50 200 होता अच्छा, ओके सर। नहीं, ये फॉलो होता ही है मतलब, है। यस। यस। कितना भी ये हो जाए। इवन ये भी आए, जैसे कोविड का भी आ गया था ना, तो भी इवन 2008 वाला भी ये फॉलो हुआ था। यस। वो टाइम पे भी वो रिवर्स किया ही था। मंथली में तो देखोगे तो और ज्यादा ये मिलता है। देखिए, ये वाला। उन्होंने तो मतलब इतना ये बोला था कि अगर ऐसे ईएमएस के इस पे आ गए तो मैं तो प्रॉपर्टी बेच के पूरा इन्वेस्ट कर दूं। यस। ऐसे उनका स्टेटमेंट था। हाँ। बस सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि वो एग्जैक्टली। हिस्ट्री रिपीट होता ही। मंथली 2008 200 पे वाला, आया वो तो नो ब्रेनर है। 200 नो, से थोड़ा हाँ, आसपास भी आ गया तो मंथली नो ब्रेनर है। यस अब यस। बेच बेच बुझ के ले लेने का, वो तो है ही। आप जस्ट मतलब किसी को ये नहीं कर रहे, बस सजेशन मेरा ये, मतलब मैंने ये पढ़ा था तो यस। आपको। यस। यस। थैंक यू सर, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके। हाँ, एनीबडी एल्स? सर Okay, मुझे sir. 5 मिनट दीजिए अपने, मेरे को ना कुछ डिस्कस करना है आपसे। बोलिए सर। Okay, अ, sir. Thank you, sir. मुझे ना जो वैसे टेक्निकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ओके। मगर मुझे ना जैसे लास्ट 1 साल की जर्नी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ओके। कि मैंने मतलब लास्ट 1 साल से मैंने लगभग, मेरा कैपिटल होगा 10 लाख के अप्रोक्स था। ओके। तो स्टार्टिंग में मतलब 3-4 महीने में प्रॉफिटेबल भी रहा हूँ लगभग,
90,000 के आसपास प्रॉफिट भी गया था मैंने पहले 4 मंथ में। ओके सर। फिर उसके बाद धीरे धीरे लॉस होना स्टार्ट हुआ, और मेरी जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि मुझे रोज थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि मुझे ग्रीन में रहना है, मुझे एट द एंड ग्रीन में रहना है। तो मैं छोटे छोटे प्रॉफिट भी बुक करने लग गया। ओके। और जो अभी एंड में मतलब दिसंबर पूरा हो गया है, तो लगभग मेरा जो लॉस है 1,25,000 के आसपास का है, मतलब 12% के आसपास मान लो अपनी कैपिटल का, हम्म 12-13%। हम्म तो मुझे यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है मेरी, बिल्कुल मैं आप ही की तरह ट्रेड करता हूँ लगभग, कि वही सेलिंग डायरेक्शन वाली सेलिंग करता हूँ। ओके मैंने आपकी वीडियो देखी थी ना, उसमें देखी थी डिजिटल ब्लॉगर में, तो ओके मैं सर। कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था आपसे काफी। तो फिर मुझे पता चला कि आपका भी एक चैनल है, और फिर मैं टेलीग्राम के थ्रू आपके मतलब मीटिंग में आया हूँ आज, फर्स्ट ओके टाइम सर। आया हूँ। ओके। तो मतलब मुझे ये बता दो आप कि मैं कहाँ पे गलतियां कर रहा हूँ। मुझे गलतियां दिख भी रही है अपनी है, मेरा जैसे मैंने अपना अभी पीएनएल खोला हुआ है ना, हम्म तो जैसे 200 मतलब 200 डेज होते हैं ट्रेडिंग के साल भर के लगभग मान लो हम्म। तो उसमें मेरा जो रेड है वो लगभग 70 से 75 डेज है, और बाकी सब ग्रीन है, मगर उसके बावजूद भी मैं हूँ लॉस में। और लास्ट जो 4 मंथ है नहीं, अगर उसमें 75% ऑफ द डेज आपका रेड में है तो आप तो लॉस में ही होंगे ना सर। हाँ, और ग्रीन मतलब ग्रीन 125 डेज हो गए ना फिर, मतलब ग्रीन में ज्यादा दिन रह अच्छा, गया हूँ, और 75 रेड डेज बोल रहे हो आप मुझे? ओके, मुझे लगा हाँ डेज, 75%। ओके ओके। नहीं नहीं परसेंट नहीं, डेज डेज। ओके सर। ओके। और लगभग जो लास्ट 4 मंथ में है मैंने कोई बड़ा प्रॉफिट बुक किया ही नहीं है। मतलब जैसे पहले जैसे मैं दिन का फिक्स कर लेता हूँ कि मुझे ना लगभग मैक्सिमम लॉस लेना है 20,000 रुपये, उससे ऊपर मैं जाऊंगा नहीं, हम्म। पहले मैं दिमाग में ये बिठा लेता हूँ। ओके सर। सर तो और फिर आपने जो 75 डेज का लॉस बोला है उसमें सबसे बड़ा लॉस कितने का होगा सर? उसमें 75 डेज। लॉस हुआ है, सबसे बड़ा हुआ है एक दिन में हुआ है 30,000 रुपये का लॉस हुआ है, 30,000 का। और और सर ऐसे ही बाकी? मैंने ना लगभग 6 से 7 बारी अपने रूल ब्रेक करे हैं पूरे साल भर में। हम्म। तो एक तो कुछ लॉस वहां से हो गया मेरा। सर और बाकी जो 125 डेज आपने प्रॉफिट में बताया उसमें से सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना था आपका? एक प्रॉफिट हुआ है 35,000 का। तो लॉस और प्रॉफिट ऑलमोस्ट इक्वली है, पड़ा नहीं हुआ। नहीं, मगर ऐसा है ना, वो एक बार बुक किया है मैंने, उसके बाद मैं सीधा 20-20 हजार रुपए का ही बुक कर रहा हूँ, या उससे नीचे का बुक कर रहा हूँ, 15-15 हजार। और जो मैं लास्ट 4 मंथ का बता रहा हूँ आपको, हम्म। वहां पे तो मैंने बुक ही मुश्किल से 11-12 हजार रुपए की प्रॉफिट बुक करे हैं। और मार्केट मुझे दे भी रहा है प्रॉफिट, मुझे पता है मैं सिस्टम में बैठा हुआ हूँ। और अपना जब मैं प्रॉफिट बुक कर दे रहा हूँ उसके बाद मैं मार्केट को देख रहा हूँ कि मैंने एनालाइज भी सही किया था, मगर मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ओ, तो ये धीरे धीरे मतलब मैं गलत वे में चला जा रहा हूँ। तो स्टार्ट सही कर रहा था मैं ईयर का, जो मेरा स्टार्टिंग चल रहा था उसमें मैं प्रॉफिटेबल भी हो रहा था, मगर अब धीरे धीरे मैं बिल्कुल ही मतलब मेरी साइकोलॉजी थोड़ी खराब हो रही है। ओके। और बस मतलब मेरा ये हो रहा है कि मेरे को दिन प्रॉफिट में दिखना चाहिए, चाहे 1,000 रुपए का प्रॉफिट ही सर दिख रहा है मैं वो आप छोड़ दो ना, आप दिन प्रॉफिट में निकालने का क्यों सोच रहे हो आप? नहीं, मैं जैसे पहले भी बताया था वो हर हर दिन प्रॉफिटेबल कोई भी नहीं हो सकता सर। तो राइट ये जो राइट ये जो आप चेस कर रहे हो हर दिन प्रॉफिटेबल, उसी के चक्कर में आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स में भी निकलने के लिए कंफर्टेबल हो गए आप। राइट राइट, यही प्रॉब्लम मतलब ये अब बिल्ड हो रही है मेरे अंदर। और मुझे ना अपना दिन ग्रीन में सेव कर लेता हूँ, फिर मेरा पूरा दिन का मूड सही रहेगा। मतलब मैं उसमें डिपेंड हो जा रहा हूँ कि मेरा दिन का मूड भी सही रहेगा, मेरा आगे मतलब मैं सुबह मुश्किल से 1 या 1.5 2 घंटा ट्रेड करता हूँ। उसके बाद मैं फिर अपना मतलब छोड़ देता हूँ और काम करने लग जाता हूँ। मगर अगर मैं उसमें पॉजिटिव रहता हूँ तो ऐसा रहता है कि मेरा दिन बिल्कुल अच्छा जा रहा है। सर आप या नंबर ऑफ ट्रेड्स लिमिट करते हो पर डे या वो नहीं होता है? हाँ नहीं, नंबर ऑफ ट्रेड भी मेरे लिमिट रहता है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैंने पूरे साल भर में 7 बारी वो वाला ब्रेक किया है अपने रूल, कि जिससे 20,000 से ऊपर का लॉस ले लिया मैंने, 6-7 बारी लॉस। तो ओके। मैंने ऐसे ही लगभग 2-3 बार अपना, 2-3 बार नहीं उससे ज्यादा ही, मतलब मान लो 10 बार मैंने ऐसी रूल ब्रेक किया होगा जिसमें मैंने 4-5 ट्रेड से ऊपर ले लिए, वरना मैं अब जो है 3 या 4 ट्रेड ही लेता हूँ, उससे ऊपर तो लेता ही नहीं हूँ। मगर ओके। यही है कि एंड आपका प्रॉफिट आपका सेटअप ये पूरे साल भर में सेम ही था, मतलब आप जिस सेटअप से ट्रेड सेटअप, लेते हो? हाँ, मतलब मेरा सेटअप ऐसा है सिंपल। मैं वो देखता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है, वहां पे कैंडल देखता हूँ। अगर सपोर्ट में है तो कोई बुलिश कैंडल देखता हूँ, और जैसी बुलिश कैंडल बनती है मैं एंट्री ले लेता हूँ। और अपना एसएल मैं छोटा ही रखता हूँ, 10 पॉइंट का, 12 पॉइंट का। जैसे निफ्टी है तो निफ्टी में मैं लगभग 10 या 12 पॉइंट का एसएल रखता हूँ। और अगर एसएल हिट
हो गया तो फिर नेक्स्ट ट्रेड का देखता हूँ कहाँ पे मिलेगा। अदरवाइज अगर वो प्रॉफिट भी होता है और थोड़ी देर होल्ड भी करता है, वो प्रॉफिट में या लॉस में मतलब घूमता रहता है, तो मैं डर के मारे जैसे ही हल्का सा प्रॉफिट में जाता है मैं निकल जाता हूँ कि चलो तो छोड़ना, ग्रीन में तो आप एक 10-15 दिन के लिए ये कीजिए कि आपके सेटअप के हिसाब से आपने ट्रेड लिया, सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के बाजू में हट जाइए ना आप। सिस्टम में स्टॉप लॉस और प्रॉफिट डाल के टारगेट डाल के जब अच्छा। आपको आपको मतलब आपने पिछले 1 साल के ट्रेडिंग में जब आपको ये पता चल गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो एनालिसिस है वो सही बैठ रहा है और टारगेट लेवल्स आ रहे हैं, और बस आपके ये साइकोलॉजी के हिसाब के वजह से आप बैठ नहीं पा रहे हो, तो एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट सिस्टम में डाल के छोड़ दो, आप निकल जाओ स्क्रीन से और हाँ, हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो। और अगर मैं जैसे कि ये करता हूँ तो फिर मेरा जो ये विन रेट नहीं जो सर, अभी ये आ रहा है, परफेक्ट और 100% करेक्ट एक ही सॉल्यूशन है सर इसके लिए, दूसरा कुछ नहीं, कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। ये आप बोल रहे हैं ना चरणजीत से, वही सेम है सर, एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन है इसके लिए। तो मतलब अब जब राइट इन्होंने राइट। 1 साल में इतना रिफाइन कर चुके हैं ये सेटअप सर, नेगी सर, तो आप तो ये आराम से ट्राई करके देख सकते हो कि आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड बना तो ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस डालिए और टारगेट भी डाल के निकल जाइए। आप क्या, असली आप तो मुझे आपने जैसे बोला सेलिंग ही करने वाले हो आप, मतलब मैं जैसा करता हूँ वैसे हाँ डायरेक्शनली सेलिंग कर रहे हो, तो उस केस में तो राइट। ये टेंशन भी नहीं है कि प्रीमियम पे हंटिंग होता है स्टॉप लॉस, हमेशा बायर्स के ही प्रीमियम में हंटिंग होता है स्टॉप लॉस, सेलर का तो बहुत कम ही हंटिंग होता है। तो आप प्रीमियम्स को तो बराबर स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स डाल के जा सकते हो आराम से। बट मैं ना जो अपना एसएल रखता हूँ ना वो इंडेक्स के हिसाब से नहीं रखता, बस मैं सोच लिया मैंने दिमाग में कि 10 या 12 पॉइंट ही दूंगा एसएल का। जैसे इंडेक्स मतलब में कोई कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई सपोर्ट में, तो मैं उस हम्म, ग्रीन कैंडल के नीचे वाला सपोर्ट नहीं रखता, मैं अपने दिमाग में मान लेता हूँ कि ये 10 या 11 पॉइंट ही दूंगा मार्केट को, अगर इसे लेना है तो ले ले, वरना मेरे तो को 10 या 11 प्रॉफिट। पॉइंट आप स्पॉट पे बोल रहे हो या प्रीमियम पे बोल रहे नहीं नहीं, प्रीमियम में निफ्टी का। हो? हम्म। 10-12 पॉइंट का ही एसएल देता हूँ मैं, मतलब मेरा ये सेट, मुझे ऐसा लगता है ना कि सेटअप तो ऑलमोस्ट सारे काम कर लेंगे धीरे धीरे, अगर तुम उसे 3 या 6 महीने दोगे, हम्म। मगर सारा खेल है कि आपकी साइकोलॉजी, आप अपने रूल पे इंटैक्ट रहते हो कि नहीं रहते हो, और वहीं यस, पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। यस। तो जैसा आपने बताया, एक बार आप ये ट्राई करके देखिए कि ट्रेड लिया आपने, स्टॉप लॉस डाल दिया, टारगेट डाल दिया, और फिर आप हट जाओ। ठीक 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 सर। और लगभग आप जैसे ट्रेड करते हो, आप भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही ट्रेड करते हो, हाँ। मतलब जैसा मैं। हाँ, यस, बस आपका थोड़ा सा ट्रेड लेने का तरीका अलग होगा। यस। मतलब सेटअप्स अलग होंगे, आपका सेटअप और मेरा सेटअप अलग सेटअप होगा, बट कर अल्टीमेटली लेते हैं अभी। ऑप्शन वाला जो डबल लेग वाला स्ट्रेटेजी मैं वही करता हूँ, एक बेचो, आउट ऑफ द मनी जाके खरीदो मार्जिन के एक बार मेरे को बताना, एक बेचो मतलब वही डायरेक्शनली एक डायरेक्शन के लिए बेच देते हो ना आप? लिए। यस, यस। जैसे मतलब मार्केट अभी समझ लो गिरने वाला है, जैसे अभी 26,050 पे, और मुझे लग रहा है मार्केट गिरने वाला है, तो मैं 25,800 या 850 सी बेचूंगा और 26,300 या 200 सी खरीदूंगा वो मार्जिन के लिए। हाँ हाँ, मार्जिन के लिए सेम मैं भी ऐसे ही करता हूँ। आप एटीएम वाला ही लेते हो या थोड़ा सा वहां चल जाते हो ओटीएम में, नहीं सर, या आईटीएम सेल आईटीएम? करता हूँ मैं। आईटीएम सेल करते हो, मैं भी लगभग, मैं बहुत ज्यादा अभी क्योंकि अभी अभी आईटीएम नहीं विक्स जाता है, हूँ। विक्स है ही नहीं, तो एटीएम और ओटीएम तो कुछ मूव करते ही नहीं है, कोई फायदा नहीं, तो अब आईटीएम ही मैं करना भी पड़ता है। आईटीएम ही करता हूँ, वो भी मगर मैं बहुत ज्यादा आईटीएम वाला नहीं करता हूँ, जैसे कि एक स्टेप आगे वाला ही करता हूँ। हाँ, अभी मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ सर। अभी अगर 26,050 है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है मैं टारगेट कहाँ तक का सोच रहा हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि टारगेट लंबा मिलेगा तो मैं लंबा आईटीएम करता हूँ, अगर मुझे स्कैल्प करने ही बाहर निकलना है तो 100-150 पॉइंट वाला आईटीएम। ओके ओके ओके, नहीं मैं तो अपना फिक्स जैसे रखता हूँ, अभी, मैं ये। जैसे स्टार्टिंग ये हाँ सेशन में मैंने बताया था कि 25,700 से लेकर 26,200 का एक रेंज बन गया है। अभी समझ लीजिए 2-3 हफ्ते के बाद ये रेंज टूटने वाला है, और अब क्लियर शॉट, मतलब आपके सेटअप भी, अब मेरे सेटअप से क्लियर सिग्नल मिल गया कि भाई अभी ये रेंज तोड़ रहा है और ये रेंज से बाहर जाने वाला है। वैसे सब केस में मैं लंबा इन द मनी लेता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि बड़ा रेंज ब्रेकआउट हुआ है और काफी ट्रैवल करेगा। अच्छा, अच्छा। और सर आपने ना उस वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो हेज वाला नहीं होता प्रीमियम, उससे भी फिर थोड़ा इंडिकेट होता है कि मार्केट वो अप अभी जा गया सकता सर, है या डाउन। वो अभी खत्म हो गया, वो आजकल आप नहीं दे काम रहे नहीं वैसे। करता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है क्योंकि ठीक है, सर, नहीं वो तो क्योंकि वो हेज हाँ। हेज वाले के हिसाब से अगर आपको सिग्नल चाहिए तो वो तभी होता है जब ज्यादा विक्स है और डायरेक्शन पकड़ने वाला होता है। ऐसे कम विक्स में कोई हेज में प्रीमियम बचता ही नहीं है, तो क्या डीके होंगे वो।
ओके ओके सर। और ये आपकी लगभग कितनी एक्सपेक्टेशन रहती है मंथ की कि कितना निकल जाए? मेरा सर यूजुअली 100 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट तक का रहता है। 100 पॉइंट अगर आप पकड़ लो तो मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब मतलब मेरे कैपिटल के हिसाब से 5 से 6% के आसपास। मतलब ये निफ्टी की बात हो रही होगी, अब तो निफ्टी में निफ्टी ही होता निफ्टी। है ट्रेड। हाँ हाँ हाँ। ओके। मेरा उतने के रहता है 5 to 6%। और अगर बीच बीच में वो लंबे रेंज वाले ब्रेकआउट्स मिलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अक्टूबर में था, अक्टूबर में मेरा 17-18% तक रिटर्न हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लंबा रिटर्न मिल गया, बट मोर और लेस मेरा ये टारगेट होता है कि 5-6% के आसपास निकलूं मैं हर month। और काफी मंथ थोड़ा ब्रेक इवन में भी जाते होंगे या हाँ, लगभग लॉस भी होता है सर। पॉजिटिव? लॉस भी होता हाँ है। वो तो हो ही वो नहीं सकता ना कि। डेफिनेटली। यस यस। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, मैं यही ट्राई करता हूँ कि स्क्रीन को ना देखूं ट्रेड लेने के बाद, क्योंकि सब कुछ ठीक हो रहा है, बस मैं ही नहीं वेट कर रहा हूँ प्रॉफिट होने का। यस सर। सर। एंड आप थैंक यू सर। पिछले जो हाँ एक हाँ। 1.5 महीना 2 महीना जो निफ्टी ने किया है ना, आप उसके बेसिस पे आपके स्ट्रैटेजीज में ज्यादा ट्वीक मत कीजिए, क्योंकि ये वाले टाइम था ही नहीं स्ट्रैटेजी बनाने का। निफ्टी ने अपनी मन चाहे तरीके से घुमाया पिछले 1.5-2 महीने में। जैसा आपका स्ट्रैटेजी है वैसे ही रहने दीजिए। 1-2 और महीना देखिए, जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएंगे तब अगर तभी भी आपका स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रहा है फिर फाइन ट्यून करने की कोशिश कीजिए। तब तक आपने जैसा बोला सिर्फ साइकोलॉजी पे आप ध्यान दीजिए, और एक बार ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस डाला, टारगेट डाला, आप हट जाओ। मैं ना जैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मैंने लास्ट 2 मंथ का ना अपने रिकॉर्ड भी कर रखा है। मैं अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर देता हूँ जिससे मैं बाद में इसे एनालाइज भी कर लूँ। तो ओके बहुत सारे ट्रेड में मैं लगभग 1:3 तक का सोचता हूँ कि 1:3 पकड़ू। ओके। और उसमें मैं ये पहले नहीं सोचता कि इस ट्रेड में मेरे को 1:2 मिलेगा। मैं पहले ही सोच लेता हूँ कि 1:3 पकड़ना है मेरे को हर ट्रेड में, और सर पकड़ता नहीं हूँ। पिछले बस इतने दिनों सोचता में हूँ। ऐसे कितने सेटअप बने होंगे जहाँ पे 1:3 मिल रहा है? मेरे को ही बहुत मुश्किल से कुछ मिला है 1:3। नहीं तो मेरा एसएल जैसे कि 8 या 10 पॉइंट का है, तो 3 पॉइंट का मूव मेरे को मिल जा रहा है वो कहीं ना कहीं पे। ओके ओके मतलब ओके। वही है, हफ्ते में 1 या 2 दिन मिल जाएगा। ऐसा नहीं हम्म है कि रोज मिल जाएगा। हफ्ते में हम्म। 1 या 2 दिन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है उसमें मैं देख रहा हूँ कि मार्केट मेरे को दे भी रहा है टारगेट, बट स्टिल मैं होल्ड ही नहीं कर रहा हूँ, तो कहाँ से प्रॉफिटेबल हाँ हूँ मैं? हम्म। तो मेरे को बस एक ही ये प्रॉब्लम आ रही है कि होल्ड में सर जब दिक्कत से हो रही जेन स्ट्रीट निकला है ना मार्केट में, जिसने है। होल्ड जी। किया उसी के पैसे बने हैं। भले वो अगेंस्ट में हो या फॉर में हो। पहले जेन स्ट्रीट हम्म, के टाइम पे हो जाता था कि मतलब एकदम से आपके डायरेक्शन में चला गया और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता था। अभी आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक बार डायरेक्शन आपको दिखा और आपके सेटअप में बना तो आप होल्ड कीजिए, तभी बनेंगे ये मार्केट में पैसे, नहीं तो नहीं। और राइट वही राइट। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया आजकल बायर्स के लिए। बायर्स, मुझे लगता है, मुझे कोई दिखता ही नहीं आजकल बायर जो प्रॉफिटेबल है। एटलीस्ट लास्ट एक 6-7 महीने में तो मैंने एक भी प्रॉफिटेबल बायर को नहीं देखा है। सर मैं तो सेलिंग से मतलब मैं स्टार्ट तो मैंने कर लिया था 2 साल पहले ही। तो शुरू में कैपिटल की प्रॉब्लम होती है, फिर मैं बाइंग बाइंग में मतलब सारी चीजें सीख रहा था तब कि हम्म मार्केट कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। फिर हम्म। बाद में मैं भी इसी में शिफ्ट हो गया था कि मेरे को सेलिंग करनी है। तो लगभग मैं 10 लाख के अप्रोक्स की कैपिटल से ही यूज कर रहा हूँ। तो अब ओके। मतलब पूरा साल निकल, और मेरा ना पूरा साल निकल गया है इसमें। जैसे मैं पीएनएल खोलता हूँ तो मेरा जो जितना भी लॉस हुआ है ना 1,25,000, वो सारे चार्जेस में गए हैं। मतलब जो हाँ रियलाइज वही। पीएनएल है ना, वो बस 150 रुपए का है। वो सही में बाकी सर, वो सब मैं निर्मला ब्रोकरेज सीतारमन ने दी। बैंड बजा के रखी है। हाँ तो वो ही, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा लॉस किया हो, क्योंकि हाँ। रियलाइज पीएनएल बस 150 रुपए का है। बाकी जो चार्जेस है पूरे डेढ़ मतलब 1,25,000 के चार्जेस ही भरे। यस। वो तो गजब है अपना मुझे देश। बस मगर मेरे को फीलिंग भी आ रही है कि यहाँ से थोड़ा सही, मतलब मैं जा सही डायरेक्शन में रहा हूँ, बस मुझे यस वहां यस पे काम करना है यस सर यस। कि मैं होल्ड कर सकूं अपने प्रॉफिट को। यस। बस सर यही चीजें मेरे को पूछनी थी आपसे, क्योंकि जब मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो मेरे को बहुत चीजें रिलेट हो रही थी कि आप भी सेम वही चीजें करते, क्योंकि मैंने किसी को ज्यादा देखा नहीं था कि ये डायरेक्शन वाली सेलिंग करते हैं। तो हाँ मेरे को आप दिखे थे उसमें, फिर मैं कांटेक्ट करने के उसमें था। फिर एक और चैनल में आपकी वो आई थी वीडियो, हाँ, तो वो विजय उसमें टैक्सी आपका वाला था। ये वो डाला हुआ था टेलीग्राम वगैरह, तब जाके मैं आप हम्म। तक पहुंचा। ओ थैंक यू सर, थैंक यू। बस सर यही पूछना था मेरे को। बाकी अब मैं 1-2 महीने और ट्रेड करके थोड़ा देखता हूँ इम्प्रूवमेंट आती है नहीं आती।
बस मैं अपने कैपिटल में ज्यादा बड़ा डेंट नहीं लेने देना चाहता, क्योंकि मैं दैट इज फाइन लॉस फिक्स कर देता हूँ पहले ही। यस तो इससे ये बच जाता है कि जैसे कि अभी हो तो रहा है मेरे को लॉस, मगर धीरे धीरे हो रहा है और मुझे पता भी चल रहा है गलती कहाँ पे हो रही है। ओके मगर अगर मैं जैसी ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर दूंगा तो मुझे पता है एक ही बारी में पड़ेगा पूरा डेंट मेरे कैपिटल में, फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। बस सर यही डिस्कस करना था आपसे। अब ओके मैं सर ट्राई करता हूँ यही सेल लगाना और टारगेट लगाना और स्क्रीन को नहीं देखना। यस ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर थैंक यू एवरीवन